Hello friends, this is Poonam Soni from Biyani Group of Colleges. In the last lecture we studied about structures and we have already seen the basic syntax for writing structures and a basic example which includes a structure. So in today's class we will see how we can access the structure using a pointer. In the previous lecture we accessed the structure variables or the structure members by using the structure variable name. स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल रोल नंबर था, ग्रेड था, उनको हमने कैसे एक्सेस किया था? स्ट्रक्चर के वेरिएबल नेम से. बट आज हम क्या करेंगे? हम उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यूजिंग पॉइंटर्स की हेल्प से. सो लेट्स सी. सो इन दिस एग्जांपल आई हैव डिक्लेयर्ड अ स्ट्रक्चर struct student in which I have taken two members, one is grade and another one is roll number. Grade is character type and roll number is integer type. And in the same statement, in the previous lecture we also discussed two alternative ways for declaring structure variables. हमने structure variables declare करने के लिए दो alternative ways भी देखे थे, जिनमें से एक का एग्जाम्पल हमने कल देखा था जो हम सेपरेटली उसको डिफाइन कर रहे थे. इन टुडेज एग्जाम्पल, आज के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर जहां हमने डिक्लेयर किया है उसी स्टेटमेंट के साथ हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने दो वेरिएबल्स बना दिया. वन इज पॉइंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर टाइप एंड अनदर वन इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल दैट इज st1. नाउ इन दिस पॉइंटर आई हैव असाइन्ड द एड्रेस ऑफ st1. st1 का एड्रेस मैंने दे दिया है पॉइंटर में. नाउ दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग दिस st1. In the next statement, I have asked the user to enter the details in the sequence. First, he or she will enter the grade and then roll number. हमने कल बात भी की थी, पहले लेक्चर में हमने बात भी की थी कि हम उसको डिटेल्स का सीक्वेंस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर इन केस वो सीक्वेंस उल्टा कर देता है, यूज़र अगर इनपुट करते समय रोल नंबर पहले इनपुट कर देगा और ग्रेड बाद में, तो हमारे प्रोग्राम में रन टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर हमें हमारा डेटा इंटैक्ट नहीं मिलेगा. तो हमने उसको बता दिया है कि फर्स्ट यू हैव टू एंटर ग्रेड एंड देन रोल नंबर. इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम स्कैनिंग दोज वैल्यूज यूजिंग scanf. So here you can see how it is different when we access this grade using the structure variable and using a pointer. When we access this using a structure variable, what we generally write ampersand st1 dot grade. This we generally write when we access this grade using this variable name. But when we access this, when we want to access this grade using this pointer, what we will write? We will write the pointer name, no ampersand, then an arrow. Now, how this arrow will be made and see, there is no arrow key on this on the keyboard. ये key हमें keyboard पे नहीं मिलता है. तो how this is constituted? One hyphen and then this greater than symbol, closing angular bracket. So इस तरीके से आपको ये arrow key बनाना पड़ेगा इस पे. तो pointer, grade, pointer, roll. This is how values will be taken as input. Now when we want to output the details, you have entered grade equal to %c, roll equal to %d, and this is how again you will write, but this time I will use this indirection operator asterisk, क्योंकि हमें पता है अगर हमें एड्रेस, इफ वी आर डीलिंग विद एड्रेस, अगर हम एड्रेस से डील कर रहे हैं तो डायरेक्टली वी कैन राइट द पॉइंटर नेम बिकॉज दिस पॉइंटर इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. पॉइंटर में क्या है? वेरिएबल का एड्रेस है, तो मुझे एक्सप्लिसिटली एम्परसेंड लगाने का नीड नहीं है. बट इन केस व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यूज एट दैट एड्रेस, व्हाट वी यूज दिस एस्ट्रिक. दिस केस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पॉइंटर्स एज वेल. तो जब हम वैल्यू की बात करेंगे वी विल यूज दिस एस्ट्रिक. एस्ट्रिक वैल्यू कहाँ का? जो पॉइंटर ग्रेड को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे जो वैल्यू है दैट आई वांट. सो दिस इज हाउ, दिस इज द बेसिक वे of accessing structures using pointers. Next, let's see if we want to store an array within a structure. For example, array within a structure का क्या मतलब हुआ कि अभी तक जो हमने लिया है that is हमने रोल नंबर लिया है और एक ग्रेड लिया है. बट अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे एक रोल नंबर लेना है स्टूडेंट का और उस स्टूडेंट के मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए हैं. Not only the single marks, not only for a single subject,
बट मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट एन एरे फॉर मार्क्स, और वो मार्क्स का एरे हम रख देंगे स्ट्रक्चर के अंदर। सो लेट्स सी हाउ टू deal with arrays within structures. So this is a basic example which contains an array within a structure. एक array है हमारे पास में जिसको हमने structure में रखा है. That array is marks and it contains 3 elements of integer type. Fine. So let's see. We are starting the main and we have declared a variable I. That most probably we have taken this variable as the loop counter. लूप में कितना टाइम्स हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दिया है या फिर कितना टाइम्स हमने उसको रिट्रीव कर लिया है, दिस विल बी ट्रैक्ड बाय यूजिंग आई. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव डिक्लेयर्ड अ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन. हमने उसमें एक रोल नंबर का वेरिएबल लिया है, रोल इंटीजर टाइप. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टेकन इज मार्क्स, एन एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप. सो and simultaneously while declaring the structure we have given a variable name as well. We have defined a variable st1. st1 हमने एक variable बना दिया है student type का. तो st1 will be created like, it will be roll for 2 bytes for roll and then an array of 3 elements which is known as marks, and indices will be like 1 0 1 and. So this variable will hold memory for roll and marks, 2 bytes for roll and 6 bytes for marks, 2 2 and 2. Fine. So let's see how to take values in this structure. हमने यूजर को मैसेज दिया, एंटर डिटेल्स लाइक रोल नंबर पहले देना है और फिर 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने हैं आपको. तो जब भी यूजर रोल नंबर देगा, सपोज उसने बोला 5, रोल नंबर 5 एंड एंटर. जैसे ही एंटर किया तो 5 कहाँ चला गया, st1 के रोल में. तो रोल को हम इनिशियलाइज कर देंगे 5 से, असाइन कर देंगे, सॉरी रोल में हम असाइन कर देंगे 5. देन व्हाट वी हैव डन, सिंस वी आर डीलिंग विद अरेज, सो वी नीड टू क्रिएट अ लूप एज वेल. हमें एक लूप बनाना होगा जो रिपीटेडली उस अरे के अंदर वैल्यूज लेगा. फॉर दैट आई हैव टेकन दिस फॉर लूप, जिसमें हमने i को एक काउंटर लिया था जो हमने ऑलरेडी उसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से. सो दस i विल बी इनिशियलाइज विद 0. i लेस देन 3 है, येस. अंदर आएंगे हम लूप में, जो फर्स्ट वैल्यू अब यूजर देगा, सपोज उसने दिया 3 एंड एंटर. 3 एंटर करते ही वो कहाँ चला जाएगा, st1 के मार्क्स के ith लोकेशन पे. तो st1 के मार्क्स के ith लोकेशन पे i क्या है, i का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, i का प्रेजेंट वैल्यू इज 0. तो i दिस विल बी असाइन टू मार्क्स ऑफ 0 एंड व्हाट विल बी असाइंड, जो यूजर ने दिया है दिस 3 विल बी असाइंड टू मार्क्स ऑफ 0. सो दिस इज 3. नाउ दिस लूप विल बी रिपीटेड, द वैल्यू ऑफ i विल बी इंक्रीमेंटेड, this will be overwritten. Still the value of I is less than 3, yes. Again it will take value from user. 4 एंटर किया, 4 एंटर करते कहाँ चला जाएगा, st1 के मार्क्स ऑफ i पे. सो दिस टाइम द वैल्यू ऑफ i इज 1, तो फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू चला जाएगा 4. फिर लूप रिपीट होगा, तो 1 स्टिल लेस देन 1 2. फाइन. सो इंक्रीमेंट हो गया वैल्यू, this time it has become 2 लेस देन 3. yes it is true, अगेन ट्रू है. फिर हम अंदर आएंगे तो मार्क्स ऑफ 2 पे वैल्यू चला जाएगा, सपोज यूजर ने एंटर किया 7, तो 7 यहाँ चला गया. फिर हमने लूप इटरेट किया, तो हमने यहाँ पे दिस वैल्यू इंक्रीमेंटेड एज 3 लेस देन 3 है क्या, नो. दिस टाइम दिस लूप हैज बिकम फॉल्स. वी विल कम आउट ऑफ द लूप एंड वी विल ट्राई टू प्रिंट द वैल्यूज. प्रिंट भी हमें सेम वे में करना है. फर्स्ट वी विल प्रिंट द रोल नंबर, तो st1 का रोल जो भी होगा दैट इज 5 वो प्रिंट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट अगेन, अब पहले जब हमने एरे में वैल्यूज लिए थे उस टाइम पर हमने लूप चलाया था. अब जब हमें वापस से वैल्यूज को रिट्रीव करना है, हमें प्रिंट करना है, तो अगेन वी विल नीड अ लूप. तो अगेन हमने सेम लूप इटरेट कर दिया है यहाँ पे, जो क्या करेगा, st1 के मार्क्स की ith लोकेशन पे i विल कीप चेंजिंग इन ईच इटरेशन ऑफ द लूप. हर एक इटरेशन के अंदर i का वैल्यू वी आर इंक्रीमेंटिंग, तो वो चेंज होता रहेगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 रिट्रीव हो जाएगा, 1 रिट्रीव हो जाएगा, 2 रिट्रीव हो जाएगा. जैसे ही i का वैल्यू 3 होगा तो द लूप कंडीशन विल बिकम फॉल्स एंड विल कम आउटसाइड द
loop. So this is how we can create arrays within structures. Now this was an instance, or this was an example of arrays within structures. Similarly, we can create arrays of structures. Suppose we want to create multiple variables for this structure, we want to store information for 50 students. तो हम क्या करेंगे, हमें 50 वेरिएबल्स लेने की नीड नहीं है, हमें ऐसे नहीं लेना ST1, ST2, ST3, ST4 and so on up to ST50. No, this is not required. What we will do, we will create an array for this structure type student. So this is how we can store multiple values. So this we will see in the next lecture. Thank you friends for watching me. If you like my video, if you like this content, then please like, share, comment and subscribe our YouTube channel and gurukpo.com. Thank you.